فرسٹ ایئر آرٹس کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ سائنس کی طرح آرٹس کے طلبہ کو بھی گریس مارکس ملیں گے۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے سٹی 21 کے ذریعے بڑی خبر دے دی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئمہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں جیسے کہ فیکٹ فائنڈنگ وزیر اعلیٰ کی بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے طلبہ کو جو ہے وہ گریس مارکس دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم آرٹس اور کامرس کے طلبہ کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن کے مطابق فرسٹ ایئر آرٹس کے طلبہ کے لیے جو ہے وہ بڑی خوشخبری ہے۔ سائنس کی طرح آرٹس کے طلبہ کو بھی جو ہے وہ گریس مارکس ملیں گے۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے سٹی 21 کے ذریعے جو ہے وہ ایک بڑی خبر سنا دی ہے۔ آرٹس کے طلبہ کو گریس مارکس سے کیوں محروم رکھے؟ کراچی میں آرٹس کے طلبہ بہت زیادہ ہیں، آرٹس کے طلبہ بھی مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارشات پر سب طلبہ کے لیے ہیں۔ کمیٹی کی رپورٹ میں سب بچوں کا ذکر نہ ہونا یہ غلطی ہے۔ ایسا نہ کیا تو سب طلبہ کے لیے ایک یونیفارم پالیسی نہیں بنے گی۔ آرٹس اول کے امتحانات میں جو ہے وہ تقریباً 11,000 طلبہ شریک ہوئے تھے۔ صرف 20% جو ہے وہ طلبہ نے کامیابی حاصل کی تھی 6 پرچوں میں، جبکہ 80% طلبہ جو ہے وہ ناکام قرار دیے گئے تھے۔ جی آئمہ، یہ بھی بتائے گا کہ یہ پروسیس کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا گریس مارکس دینے کا؟ جی بالکل، دیکھیں چیئرمین انٹر بورڈ نسیم احمد میمن کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ دن رات جو ہے وہ اس معاملے پر کام جاری ہے۔ گریس مارکس کے معاملے پر جو ہے وہ محنت سے کام کیا جا رہا ہے، دن رات ایک کر کے جو ہے وہ یہ کام مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ امتحانی فارمز کے جو ہے وہ جمع کرانے کی تاریخوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، تاہم جو ہے وہ یہ کام مکمل جلد از جلد کیا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ دن رات کام جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے آئمہ خان، ہمیں اپڈیٹ کریں تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم میمن نے سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کی ہے، کیا کہتی ہیں سنتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے کراچی میں تو خاص طور پہ آرٹس کے بچے بہت زیادہ ہیں اور وہ بھی مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں، تو ہم کیوں ان کو ڈپرائیو کریں ان گریس نمبر سے، اور انشاءاللہ کوئی اس پہ پرابلم نہیں ہوگی اور سب بچوں کو فائدہ ہوگا۔ کلریکل کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ مشین نے تو کمیٹی نے وہ یہی کیا تھا کہ اس وقت کیونکہ ریزلٹس یہ آئے تھے تو انڈر کنسیڈریشن بھی ریزلٹس وہی تھے۔ اب جب یہ ریزلٹس آئیں گے تو پھر دوبارہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشین کمیٹی ہم نہیں بنانا چاہ رہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی کمیٹی کی جو ہے ریکمنڈیشنز ان کو اس پہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے، ورنہ تو یہ ایک یونیفارمٹی نہیں بنے۔ اسٹریٹ کرائمز اور آدھے مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن کو مؤثر بنایا جائے، آئی ڈی سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ رفعت مختار راجہ بولے، کرمنلز ڈیٹا کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے، کرائم انسلیسس کو سامنے رکھتے ہوئے انسدادی حفاظتی اقدامات کو کامیاب بنایا جائے۔ اس پر مزید بات کریں گے انوشا جعفری سے۔ انوشا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تو دیکھیے آئی ٹی سندھ کی زیر صدارت کے کراچی میں کے مقدس اجلاس کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس جو پی ٹی او کراچی میں ہوا ہے، جبکہ آئی ٹی سندھ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یہ بتایا گیا اسٹریٹ کرائم کی گرفتاریوں سمیت آدھی ملزمان نئے جرائم پیشہ عناصر منشیات استعمال کرنے والے کرمنلز اور ضمانتوں پر رہائی پانے والے اور جیلوں میں قید ایسے ملزمان کے خلاف اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم اور آدھی ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کو مؤثر بنایا جائے، کرمنل ڈیٹا کو اپ ٹو ڈیٹ وہ رکھا جائے، کرائم ڈیٹا کا تجزیہ کریں اور اسے مہارت کے ساتھ استعمال میں لائیں۔ کرائم ڈیٹا کو مہارت سے استعمال کرنا کرائم کے خلاف مؤثر ہتھیار جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ آئی جی سنگھ کا کہنا ہے کہ کرائم انالائسس کو سامنے رکھتے ہوئے انسدادی حفاظتی اقدامات کو کامیاب بنایا جائے، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایکشن مزید تیزی سے جو لائے جائے، جرائم میں ملوث تارکین وطن کی عارضی اجازت نامے منسوخ کروائے جائیں، جبکہ آئی جی کا کہنا ہے کہ جیلوں میں قید ضمانتوں پر رہائی پانے والے ملزمان کی کڑی نگرانی بھی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے انوشا، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سندھ کابینہ کا پہلا اجلاس آج 4 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ جی بالکل، سندھ کابینہ کا پہلا اجلاس آج 4 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس پر مزید بات کریں گے، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज गवर्नर हाउस में एक सूबाई वज़ीर हल्फ ले रहे हैं इस वक्त। उसके में काबीना के अरकान मौजूद हैं। इसके बाद सूबाई काबीना के अरकान वज़ीर आला हाउस पहुँचेंगे और 4 बजे सूबाई काबीना का इजलास होगा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत। ये इजलास इसलिए अहम है, बुनियादी तौर पे है तो तारुफ़ी इजलास, लेकिन इसकी एजेंडा में अहम चीज़ें रखी गई हैं। ख़ास तौर पे अमन अमान का एजेंडा जो है सिंध काबीना के पहले इजलास में शामिल है। और इससे कबल यहाँ पर सिंध असम्बली में अमन अमान के मुतालिक सूबाई वज़ीर दाखिला ने एक इजलास भी किया है। IG सिंध से अमन अमान के मुतालिक एक ब्रीफिंग भी ली गई है। यकीनन ये ब्रीफिंग जो ली गई है उसके बाद यहाँ पे सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। तो इस ब्रीफिंग के तनाजुर में वो यकीनन आज जो सिंध काबीना का इजलास हो रहा है उसमें बात करेंगे और अमन अमान के हवाले से काफ़ी अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। आज के इजलास में इजलास अभी शुरू नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कि वज़रा इस वक्त गवर्नर हाउस पहुंचे हैं, यहाँ से वज़ीर आला हाउस पहुंचेंगे तो सूबाई काबीना का इजलास शुरू होगा। अच्छा आजिज़, कौन से अहम फैसले होना मतवक्के हैं आज के इस अहम इजलास में जब ये इजलास होगा? देखिए ये पहला इजलास है। वैसे तो 10 सूबाई वज़रा होंगे और 3 मुशीर हैं जो काबीना के इजलास में कुछ सरकारी अफसरान को भी बुलाया गया है। तो प्रायोरिटी अमन अमान को दी गई है। इसी वजह से सूबाई वज़ीर दाखिला ने अमन अमान पे ब्रीफिंग ली जो सूबाई काबीना को आगाह करेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि कच्चे में ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा कराची में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। उन्होंने बताया कि अहम फैसले किए जा रहे हैं। तो ये फैसले बहरहाल सूबाई वज़ीर दाखिला नहीं ले सकते, इन फैसलों की मंजूरी सूबाई काबीना से ही ली जाएगी। यकीनन ये बातें वहाँ पे होंगी। एजेंडा पे सिर्फ अमन अमान है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ज़ाहिर है कि पूरे मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना है सूबाई काबीना को, सूबाई वज़रा को अपने अपने महकमे के बारे में तफसीलात से आगाह करना है, अपने अपने महकमों के बारे में आगे वो क्या करेंगे सिंध काबीना को वो बताना है। ये सारे फैसले आज होंगे सिंध काबीना में। जी ठीक है, आजिज़ जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात के लिए बिलावल हाउस में दरखास्तें जमा होना शुरू हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक रज़ा रबानी, आजिज़ हामरा और वकार मेहदी की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मज़ीद जान लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिएगा। इंतखाबात बिलावल हाउस में दरखास्तें जमा होना शुरू हो गई हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए आजिज़ वकार मेहदी समेत मुजफ्फर रज़ा रब्बानी शामिल है, जबकि मौलाना बख्श चांडियों की भी दरख्वास्त जमा हो चुकी है। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार 14 मार्च तक यानी कि कल तक दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं, जबकि दरख्वास्तें बिलावल कराची के पते पर अरसाल की गई हैं। दरख्वास्तें आसिफ अली जरदारी के नाम पर जमा कराई गई हैं, जबकि दरख्वास्तों के साथ ₹1 लाख का बैंक ड्राफ्ट भी मुंतलिक किया गया है, जबकि बैंक ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम जमा किया गया है। इससे कबल सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो है पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी ने खुसूसी हिदायत जारी की थी, जबकि इलेक्शन कमीशन की शरीयत के मुताबिक ऐवान बाला के लिए पोलिंग 2 मार्च को होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौमी और सूबाई असम्बली के बाद तहरीक इंसाफ सेनेट से भी आउट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में पार्टी के टिकट पर हिस्सा नहीं ले सकेगी। तहरीक इंसाफ सेनेट की 48 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, कौमी व सूबाई असम्बली के बाद तहरीक इंसाफ सेनेट से भी आउट होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में पार्टी के टिकट पर जो है हिस्सा नहीं ले सकेगी। तहरीक इंसाफ सेनेट की 48 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेगी। इंतखाबात में सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात जो है 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मज़कूरा नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल कल जारी किया जाएगा। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स जो है गुज़िश्ता रोज रिटायर हो चुके हैं। इंतखाबी निशान ना होने के बायस तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से जो है इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था। इस वक्त अगर बात की जाए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, तो ये दोनों ओहदे जो है खाली हो चुके हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलूचिस्तान असेंबली में रुकन की हैसियत से हल्फ उठा चुके हैं।
सेनेट में गुज़िश्ता रोज जो है मुस्लिम लीग नून के 13, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, पीटीआई के 8 सेनेटर जो है रिटायर हो चुके हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम से पीके, मैप और नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6 सेनेटर्स रिटायर हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी, एनपीएम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग फंक्शनल के एक सेनेटर जो है रिटायर हो चुके हैं। सेनेट में 48 सेनेटर इस वक्त वो मौजूद हैं जिनकी मुद्दत जो है मुकम्मल नहीं हुई है। अगर नशिस्तों की बात की जाए तो फाटा की मखसूस नशिस्तें खत्म होने के बाद जो है सेनेट की नशिस्तों की तादाद 96 है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक 8 से 2 कमसिन बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। वालिद राशिद का कहना है कि बीवी से अलहदगी को 8 साल हो गए, बच्चे अपनी नानी के पास रहते थे। हमारे नुमाइंदा इस वक्त शाज़िब हुसैन बच्चों के वालिद के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शाज़िब। जी बिल्कुल, बच्चों की तलाश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एच में जो 11 साल अनाबिया और उसके बहन जो है अयाज जो जब से लापता हुए, तो उनके जो वालिद हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राशिद साहब हमारा साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कैसे ये वाक़या पेश आया था। राशिद साहब इस वक्त जो है पुलिस से राब्ते में भी हैं और मुसलसल जो है पुलिस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जाए वक़्वा से शवाहिद जमा कर लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही हैं। राशिद साहब, क्या वाक़या पेश आया था, कब आपको इत्तला मौसूल हुई थी और अयाद और अनाबिया कब से इनके पास थे? ये 11:40 पे ये लोग बच्चे बर्गर लेने नीचे उतरे थे, तो जब से ये बता रहे हैं कि लापता है, क्योंकि बच्चे अलग रहते हैं नानी के पास। मुझे ये रिपोर्ट मिली है 4:30 पौने 5 पे सुबह, तो जैसे ही मुझे पता चला है मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने आके सारी इन्फॉर्मेशन से ली है, तो ये कह रहे हैं कि बच्चे मिल नहीं रहे हैं। तो फिर मैं एडी वगैरह गया, वहाँ जाके मैंने सारी मालूमात की, थाने पे जाके रिपोर्ट वगैरह करवाई है। अब बाकी है कि कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, ये बताएगा कि अयाद और अनाबिया जो है कब से यहाँ पर रह रहे थे और आपकी अलहदगी कब हुई थी? जी, मेरी अलहदगी को 8 साल हो गए तकरीबन, जब से ही वो नानी के पास हैं। नानी के यहाँ आप मिलने आते थे बच्चों से? बहुत कभी कभी 1.5 साल में इस तरह मेरी मुलाकात होती है। अच्छा, किसी के ऊपर शक है अभी आपको या फिर आप बच्चों को तलाश करते फिर रहे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई भी शक नहीं है कि मेरा किसी से कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है मामला। अब इन लोगों का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे यहाँ से मिसिंग हैं, मेरे पास से नहीं है नानी के। बिल्कुल, बताया जाता है कि 2015 में माँ बाप के दरमियान जो है अलहदगी हो गई थी और बच्चे जो है अपनी नानी के पास रह रहे थे। ताहम इस वाक़े का मुकदमा हैदरी थाने में जो है दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद जो है तफ्तीश की जा रही है। जी। बचत बाजार में शहरियों को रिलीफ मिल गया। गुलशन इकबाल में लगे बुध बचत बाजार में सरकारी लिस्ट के मुताबिक फलों की फरोख्त जारी है। केले 150 रुपये दर्जन, सेब 200 रुपये किलो, खरबूजा चीकू 150 रुपये किलो, अमरूद 135 रुपये किलो बेचे जाने लगे हैं। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जहाँ हम देखें कमिश्नर कराची की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अब फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त और तमाम चीज़ों की जो है वो लिस्टें निकाली जा रही हैं। आज भी लिस्ट जारी की गई है और आज का दिन जो बुध का रोज़ है वो बचत बाज़ार भी लगाया गया। मार्केट में जितने स्टॉल्स लगाए गए हैं उसके ऊपर कमिश्नर कराची की लिस्ट जो है वो आवेज़ा की गई है हर दुकान के, हर स्टॉल के ऊपर। और वो तमाम आज खुशनसीबी है कि उसी कीमतों के अंदर जो है आज बचत बाज़ार के अंदर सामान बेचा जा रहा है। वाकई में आज आवाम को जो है वो बचत का जो है सिलसिला जारी है। शहरी मौजूद हैं, आए हैं यहाँ पे, ज़रा जानते हैं उनसे। सर, आपने फ्रूट लिया, कितना फ़र्क लगा कि बचत बाज़ार के मुकाबले में बाहर जैसे आम गलियों मोहल्लों में जो बाज़ार में आप लेते होंगे, तो कितना फ़र्क लग रहा है कि बचत है इधर बचत बाज़ार में? जी हाँ, बिल्कुल बाज़ार है। बचत बाज़ार का मकसद ही है ना कि लोगों को रिलीफ मिले उसका, तो इसलिए बाहर के रेट से यहाँ काफ़ी उसी रेट में दिया है जो बचत बाज़ार के रेट हैं। बचत बाज़ार के जो रेट है ना उसी रेट में दिया। ये देखें जो लिस्ट कमिश्नर कराची की है वो जारी करता हुआ यहाँ पे आवेज़ा है। इसके अंदर बचत बाज़ार की जो कीमत है वो इस लिस्ट में यहाँ मौजूद है, उसी हिसाब से जो है वो बेचा जा रहा है। भाई, क्या कोई इंतज़ामिया की तरफ से आप लोगों को प्रेशर है क्या? पहले तो कंप्लेन ही होती थी कि बचत बाज़ार वाले या मंडी वाले रेट पर आप लोग नहीं देते थे, अब क्या सिलसिला है रमज़ान में? मसला ये देखो, जो चीज़ बारे में है वो चीज़ तो दे रहे हैं, अब जो चीज़ बारे में नहीं है वो कैसे दें? अब सही है, जो चीज़ है 150 रुपये खरबूजा का रेट है, 150 बिक रहा है, पूरी कराची में बिक रहा है, वही हम भी बेच रहे हैं। 200 रुपये 250 रुपये किलो सेब है और
मुनासिब पैसा समझो, आम दिन में वही रेट बिक रहा है, अभी भी वही रेट बिक रहा है। इस वक्त जो गुलशन में जो अलादीन पार्क से मुत्तसिल बचत बाज़ार जो कि आज के दिन लगाया जा रहा है, तो उसके अंदर लोगों को जो है वो रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। आवाम से हमने जैसे बात करी तो उन्होंने भी यही बताया कि लिस्टों के हिसाब से इस वक्त तक जो है वो सामान बेचा जा रहा है, और इंतज़ामिया भी आके यहाँ चक्कर लगा के यही देख रही है कि तमाम चीज़ें, उनके तराजू भी देख रहे हैं, उनके जो बचत बाज़ार की जो लिस्टें हैं वो आवेज़ा हैं और वो दी जा रही हैं। उसी के अंदर आवाम इस वक्त यहाँ से रिलीफ मुहैया किया जा रहा है बचत बाज़ार से। जी, वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर नॉर्थ नाज़माबाद में सस्ते आटे की फराहमी का आगाज़ हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान सोलंकी ने अपनी निगरानी में आटे के थैले फरोख्त कराए हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। बिल्कुल, सिंध हुकूमत की हिदायत पर माह रमज़ान में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रिलीफ फराहम करने के लिए सब्सिडाइज आटे की फराहमी जो है वो शुरू कर दी गई है। नॉर्थ नाज़माबाद के सब डिवीज़न का इलाका है नागन चौरंगी, यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे ये सारा अमल जो है वो जारी है। और ये सारा अमल जो है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद इमरान सोलंकी की निगरानी में अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, फरमाइएगा ये सब्सिडाइज आटे की डिटेल क्या है, किन लोगों को दिया जा रहा है और कितनी इसकी क्वांटिटी है, कब तक ये सिलसिला रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे कि रमज़ान आ चुका है, रमज़ान में हुकूमत की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आई हुई हैं गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनमें से एक स्कीम है जिसमें 10 किलो आटे का थैला 650 रुपये में दिया जा रहा है ज़रूरतमंद ख़ानदानों को। क्या तरीक़ेकार है इसका? ये ऐसा ना हो कि वो अफराद जो मुस्तहिक नहीं हैं, हमने देखा है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि वो लोग ले जाते हैं और मुस्तहिक अफराद रह जाते हैं। किस तरह यकीनी बनाया जाएगा कि ये मुस्तहिक शख्स को ही या उस ख़ानदान को ही मिले? जी, इसमें यह है कि इसके सिस्टम को नादरा से कनेक्ट किया गया है। नादरा की डिटेल सारी ली जाती हैं जो मुस्तहिक ख़ानदान है, जो आमदनी में आता है, जो 60% हमारी आबादी है जो मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है, उसमें सिस्टम में इनके ऊपर आ जाता है। अगर वो CNIC उसमें एक्सेप्ट हो जाता है, उसको दिया जाता है CNIC के ऊपर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हामिल जो ख़ानदान हैं उनके लिए क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है? जी, जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले सारे ख़ानदान यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो मुस्तहिक हैं जिनकी आमदनी 60,000 से कम है महीने में, वो लोग भी ले सकते हैं, दोनों। ये मुझे बताइएगा कि कितनी इसकी क्वांटिटी रखी गई है और कब तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा? ये एक ट्रक यहाँ पे खड़ा है जिसमें 500 बैग मौजूद हैं। कल भी इन्होंने काफ़ी सारे दिए थे। ये नॉर्थ नाज़माबाद में हमारे पास 3 लोकेशंस पे हैं, एक ये नागन पे, एक हैदरी पे और एक S ब्लॉक में। 500 बैग्स हैं फी ट्रक में, और जितना हो सके सेल आउट होगा और जितने ज़रूरतमंद हैं। ये पूरा रमज़ान चलता रहेगा। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में ये सब्सिडाइज आटा जो है वो आवाम को फराम किया जाएगा, मुस्तहिक ख़ानदानों को ये आटा मिले। इसके लिए जो है ना सिर्फ ये कि नादरा की खिदमात हासिल की गई हैं, बल्कि इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड जो ख़ानदान हैं उनको भी ये आटा जो है वो सब्सिडाइज नरगों पर मिल सकता है। जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डायबिटीज़ और मोटापे का शिकार खातून की रिपोर्टिंग सर्जरी कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तिब की दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, ज़ियाबतीज़ और मोटापे का शिकार खातून की रोबोटिक सर्जरी कर ली गई। जिना अस्पताल कराची में होने वाली सर्जरी में खातून का मैदा छोटा करके ज़ियाबतीज़ का मर्ज खत्म कर दिया गया। हाजमे का निज़ाम तेज करने के लिए बड़ी आंत को भी छोटा किया गया। 1 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल ऑपरेशन प्रोफेसर शाहिद रसूल की सरबराही में हुआ। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्जरी में 45 साल 140 किलो वजनी खातून का मैदा छोटा किया गया, जिसके बाद खातून का वजन कम हो गया और इसके जरिए ज़ियाबतीज़ भी खत्म हो जाएगी। फिर मरीजा को ज़ियाबतीज़ की अद्वियात और इंसुलिन नहीं दी जाएगी। इस तरह के 70% मरीजों में ज़ियाबतीज़ का मर्ज खत्म हो जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल के मुताबिक अस्पताल में 135 रोबोटिक जनरल यूरोलॉजी और गायनी की सर्जरीज हो चुकी हैं, जिसका आगाज सितंबर 2023 में किया गया था। गायनी की रोबोटिक सर्जरी के लिए ट्रेनिंग करवाई गई क्योंकि वो पेचीदा होती है। सर्जरी जो है वो सितंबर 2023 में इंट्रोड्यूस हुई थी जिना में, जब हमने अपना पहला रोबोट एक्वायर किया, और उसके बाद से हम अब तकरीबन 135 ऑपरेशन कर चुके हैं। तकरीबन हफ्ते में 5 से 10 ऑपरेशन होते हैं। हमने इसमें किया ये था कि सिवाय जनरल सर्जरी नहीं, बल्कि गायनेकोलॉजी
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یورولوجی سرجری ہے ان دونوں کو بھی تھیٹرز دیتے ہیں. تو پاکستان کے پڑوسی ممالک میں بھی اب تک روبوٹک سرجری کے ذریعے میٹابولک سرجری نہیں کی گئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جناح اسپتال میں موٹاپے اور میٹابولک سرجری کی گئی ہے. لیپروسکوپک سرجری میں کلائی 180 ڈگری کے زاویے سے گھومتی ہے، جبکہ روبوٹک سرجری کے عام 360 ڈگری کے زاویے سے گھومنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کا ویژن 3D ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران آپریشن پیچیدگیوں کے خدشات کم ہوتے ہیں. روبوٹک آپریشن سے خون کا زیادہ اخراج نہیں ہوتا اور اس کا کٹ بھی چھوٹا ہوتا ہے.